about the bookish language that you are supposed to read every day from 9:50 to 4 o'clock. This is all about the practical session that we are having, that why you are doing BBA, why you are pursuing BBA, after pursuance of your BBA, what you are supposed to do, and what is going on in present time. Clear? So I would like that you everybody should pay 100% attention, so that whatever I am delivering to you, you should take it as your knowledge enhancement. So let me know whether I should use totally English, or you want that I should use the simplest word that you can sing easily. Simplest word. Okay. So nowadays, the one thing that you keep on listening everywhere, whether you are sitting in IIMT or you are sitting in some other colleges throughout the India, one common word that you are keep on listening: entrepreneurship. Entrepreneurship, startup. Clear? Everybody, whether it's me or somebody else or any college, if I talk about any guest from other college or from the eminent personality, they keep on coming to your college and they keep on talking to you about startup and innovation. So, do you think that startup and innovation system is such an easy thing that everybody can do? No, sir. So, what kind of hurdles, what kind of barriers you will face if you want to be an entrepreneur? And the present time, the startups that are running in the market, they all are in loss. Paytm in loss, Flipkart in loss, Blinkit in loss. If they are in loss, then why they are running their businesses? And how do they are getting the fund? Clear? दोबारा बता रहा हूं, जब भी हम बात करते हैं इनोवेशन की, स्टार्टअप की, एंटरप्रेन्योरशिप की, क्लियर? आज की तारीख में हर जगह अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा यूज है. क्लियर? और हर आदमी इस तरह की भाषा को बोलने में बहुत गौरवित महसूस करता है कि नहीं, आई एम गिविंग द क्वालिटी ऑफ लेक्चर. बट एक्चुअलिटी क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बीबीए, व्हाट यू आर सपोज टू डू आफ्टर 11th, you entered into 12th. Clear? After 12th, you are having the possibility for going college degree. Now you are graduating. After graduation, you have two options. Either you will go for MBA or you will go for job. Clear? If you go for MBA, then again after MBA, where you are supposed to go? Job. So you are having two possibility: ultimate possibility or penultimate possibility. Clear? Ultimate possibility that you are going to do the job, or you are going to do your own venture. Clear? दूसरा, या तो आप अपनी नौकरी के लिए जाएंगे या आप स्टार्टअप के लिए जाएंगे. क्लियर? इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता? अब सबसे आसान जो चीज आपको लगती है वो है इनोवेशन. इनोवेशन होता क्या है? व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? नॉर्मली आपने 50 बार सुना होगा इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप. वो होता क्या है? न्यू आइडिया. अब सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस और इनोवेशन की. क्लियर? बिजनेस और, जैसे ये साहब हैं, इन्होंने एक मार्केट में अपनी एक शॉप ओपन की. ठीक है? वो शॉप आपकी
रिफ्रेशमेंट की हो सकती है, जहां पर आपको सैंडविच या रेस्टोरेंट हो सकता है, क्लियर, या वो आपका टेक्सटाइल फैशन इंडस्ट्री हो सकती है, शू शॉप हो सकती है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। क्या है? ये बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। आपने शॉप ओपन की कपड़ों की, आप फैशन इंडस्ट्री में हो, आप शर्ट्स, ट्राउजर्स, जैकेट्स ये सेल कर रहे हैं, या आपका स्वीट्स की शॉप है, आपने मिठाई की दुकान खोल ली, या कोई भी दुकान खोली जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो उसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वो स्टार्टअप नहीं, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए स्टार्टअप, वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। आपके फादर का बिजनेस था, आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने अपने पेरेंटल, अपनी फैमिली वेंचर को ज्वाइन कर लिया, अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो वो स्टार्टअप नहीं है, दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। और इस ट्रेडिशनल बिजनेस में जो पैसा होता है, दैट इज कैपिटल। उस बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए, क्योंकि रनिंग बिजनेस है, रनिंग बिजनेस इन द सेंस हमारे फैमिली ने, हमारे पेरेंट्स ने वो बिजनेस रन किया है, इसका मतलब वो बिजनेस में पैसा आ भी रहा है, और जो पैसा आ रहा है उसी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट? Now come to the second phase. Your family doesn't have any kind of family business. They all are job or employee somewhere, but you are completing your BBA. Clear? After completion of your BBA, you are focusing or doing your own business or startup. Clear? अब आपको ये तो समझ में आ गया कि स्टार्टअप क्या है और बिजनेस क्या है। क्लियर? अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस पहले से है और आप उसी बिजनेस का एक नया रिटेल आउटसोर्स बोलते हैं, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस माना जाएगा, वो स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। पहली बात। दूसरा, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कहीं ना कहीं जगह चाहिए। शॉप लोगे तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग में आपको वो प्रीमाइस चाहिए ना, जहां आप शॉप ले सको। ठीक? फिर जिस भी चीज की आप शॉप ओपन करोगे, चाहे वो सर्विस की हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए होंगे, टेबल, चेयर चाहिए होगा, लोग हायर करोगे, क्लियर, काम करने के लिए। तो इन सब चीजों को करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? कैपिटल, पैसा। अब आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, यू आर इन ट्रेडिशनल बिजनेस का ड्रॉबैक क्या होता है? इन ए ट्रेडिशनल बिजनेस द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज टू अरेंज द कैपिटल, इज टू अरेंज द, इट माइट बी योर ओन कैपिटल, ये आपका पैसा हो सकता है, और you borrow certain amount of money from your friends or from your parents or from your relatives. Clear? In traditional business, the investor would not show any kind of interest because these kind of business already existing into the market. Why they are going to invest their money to your shop or to your traditional business? So in that case, the getting investment, the probability of getting investment is quite low. Traditional business में investors ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि वो business already exist करते हैं। Market में जब वो already exist करते हैं, तो वहाँ पर competition बहुत ज़्यादा होता है। That is red ocean strategy. There is too much competition where in the market. So if this is already existing in the market, then probability of getting profit is less. Investor पैसा क्यों लगाता है? वो अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है, और वो पैसा जो आपके बिजनेस में लगाएगा, अगर ऑलरेडी बिजनेस पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा,
और जब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस सक्सेस हो, वो प्रॉफिट दे पाए। मान लो सक्सेस हो भी गया, मान लो सक्सेस हो भी गया, तो ट्रेडिशनल बिजनेस इतना सक्सेस नहीं हो पाते कि वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सके। पहले तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे लाओगे। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब? जितना मैंने लगाया, क्लियर, समझ में आ रही बात? तो अब ट्रेडिशनल बिजनेस में या तो आप अपने पेरेंट्स के या फ्रेंड्स के या अपने पैसे यूज करेंगे, क्लियर, और आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। वो बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, क्लियर। यहां पे चल गया तो आपको फायदा, नहीं चला तो लॉस आपका, क्लियर। बट इन्वेस्टर का यहां कोई लॉस नहीं है, यहां आप सेल्फ इन्वेस्टर हो, क्लियर। अब स्टार्टअप क्या होता है? सबसे पहला सवाल, स्टार्टअप होता क्या है? जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में है तो इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो एग्जांपल मानिए अगर उसका सन आता है और वो कुछ चेंजेस करता है कि मतलब अलग तरीका में करूँ और इस वे से कुछ चीज़ करूँ जो चीज़ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे, तो वो तब भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, तुमने अपने सवाल में खुद ही आंसर दे दिया, अलग तरीका। अलग, अच्छा, मतलब कि जो आ रहा है उससे नहीं, जो अगर वो चेंज कर रहा है तो उसके बाद, क्लियर। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियरल साइंस, क्लियर। हम बिहेवियरल साइंस की बात करते हैं। यहां पर कोई भी नया आइडिया किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे अर्लियर, इफ यू वांट टू सी द मूवीज, द न्यू मूवीज, वी आर हैविंग वन ऑप्शन, व्हाट? We have to go to the theater, but now we are having OTT, over the top. We are having theater also. In upcoming future, you will see picture theater के साथ साथ OTT भी same day release होगी, और उस टाइम पे क्या होगा, आप घर बैठे भी मूवी की टिकट खरीद सकते हो, और वो आपको एक कोड देंगे, उस कोड को आपने अपने सिस्टम में ऐड करना होगा और मूवी थिएटर में भी चलेगी। और यहाँ पर अब सोचो, एक थिएटर की कैपेसिटी कितनी होती है? ये 150 है, 250 मान लो, क्लियर। तो इन ए थिएटर, if I release movie, क्लियर, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक थिएटर में 250-300 की कैपेसिटी होगी। एट ए टाइम 300 पीपल देख सकते हैं। मैंने मान लिया 1000 स्क्रीन पर मैं मूवी रिलीज कर रहा हूं, तो 3000 ऑडियंस, क्लियर। 300 इंटू 1000 करो, कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख people can see a movie in a day, clear. But if I release those movie, और जब मैं 3 लाख ऑडियंस की बात कर रहा हूं, क्लियर, तो वहां पर उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थिएटर का, उसको रन करने के लिए मेरी कुछ कॉस्ट भी आएगी, भाई क्लीनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, मूवी रनिंग कॉस्ट, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, हाइजीन कॉस्ट, सब आएगा। लेकिन अगर वही चीज मैं आपको OTT पे अवेलेबल करा देता हूं, जहां स्क्रीन आपकी, मोबाइल आपका, इंटरनेट आपका, उनका कुछ जाना ही नहीं है, एंड द कैपेसिटी इज अनलिमिटेड, totally unlimited. Today we are having how many numbers? 1 अरब 42 करोड़ लोग हैं हम, 1.42, क्लियर। 1 अरब 42 करोड़ लोग हैं हम। अगर 10 रुपए भी वो आपको OTT पे एक फिल्म देखने के लिए आपसे चार्ज करें, तो 10 इंटू 60 करोड़ मल्टीप्लाई कर लो, 600 करोड़
अभी कितने ले पाते हैं वो लोग? और वो एक घंटे में कमा सकते हैं। 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ क्लब में आने के लिए उनको महीना 15 दिन लगता है। 10 rupees is quite friendly with your pocket. You can easily dilute it. So they can earn 600 crore rupees within 3 hours. अब कोई ऐसा आइडिया लेके आए, don't you think that investor would invest? Definitely they would invest. And in upcoming days, you would see it. Clear? Amazon ने, Netflix ने ये प्रोसेस शुरू भी कर दिया। Before releasing the movie over the OTT, they give you early access fees. कि अगर आप लोगों से पहले देखना चाहते हो, तो आप 200 रुपए दे दो। Early access. So they have come up with the new idea. They are charging 1499 rupees for a year. वो तो उन्होंने ले लिए, but now they have developed a new strategy. I am going to release this movie on that day. But if somebody wants to see it earlier, they have to pay 200 rupees or 100 rupees or whatsoever. But they have to pay early access fees. So again, they have generated new idea to withdraw the money from the customer's pocket. My dear friend, business with ethics. Clear? We have to deliver the value to the customer. So they have created one more value. Early access fees. तो अभी आपके सवाल का जवाब मैंने दिया कि अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है, ओटीटी पहले था, बट ए न्यू आइडिया, ए न्यू वे ऑफ रिप्रेजेंट द थिंग्स दैट कैन अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स पैसा कैसे लगाते हैं? Investors are those people, those who are having ample amount of money and they are much more possessed about the money, how to make more and more money. Clear? जो investors हैं वो पैसे के लिए बहुत ज्यादा possessive होते हैं और उनका एक ही मेन होता है, to grow their money. And how much money they want in return? 2 times, 3 times? No. They want 20 times, 40 times in return. Then only they invest certain amount of money in your business. Clear? तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा लगाने से बचते हैं, क्योंकि वहां जो आप रिटर्न दोगे वो दुगना करके दे दोगे। दुगना तिगुने को उनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी दे आर इन थाउजेंड ऑफ करोड्स। They want in return 10 times, 20 times. Clear? That's why they are investing. आज आप बहुत सारे बिजनेस, मैंने आपको बताया पेटीएम, मैंने आपको बताया ब्लैंकेट, मैंने आपको बताया फ्लिपकार्ट, they are in losses. But again, you keep on watching their advertisement over the TV, over the YouTube, over the OTT. They keep on throwing their advertisement everywhere. Clear? लॉस में हैं, इसके बावजूद वो ऐड देते जा रहे हैं। किस लिए? बायजूस 500 करोड़ की इसको फंडिंग मिली थी। बायजूस ने इंडिया, फिर 500 से फिर 5000 करोड़ की भी उसे फंडिंग मिली, फिर बायजूस ने इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया। कहां से पैसा आ रहा था? लॉस में है, वो लॉस में है, लेकिन उसके बावजूद सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। क्यों? कैक जानते हो क्या होता है? कैक, CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर, आज मैं आपको जोमेटो, स्विगी और बहुत सारे ऐप हैं, वो आपको 50%, 60% ऑफ देते हैं, 70% ऑफ देते हैं। क्लियर? क्यों देते हैं? जबकि वो कहीं से खाना लेके आते हैं, बनाने वाले ने बनाया, उसमें पैसा लगा, वो वहां से आप तक लेके आए। क्लियर? उनका पेट्रोल जला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकर्ड हुई,
और 300 रुपए में 70% डिस्काउंट देके आपसे कितना लिया? 300 का 70% कितना हुआ? 210। मतलब 90 रुपए आपसे लिए, 210 रुपए के लॉस को उन्होंने क्लियर किया। क्लियर? कस्टमर को दैट्स कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ने कहा चलो भाई, मैंने 210 रुपए इसके आज कस्टमर बनाने में इसको एक फील गुड फैक्टर दे दिया। अब 1-2 बार मैं और करूंगा इस काम को। अगर ये मेरा कस्टमर परमानेंट हो गया और महीने में ये मुझे 1000 रुपए का भी ऑर्डर करता है, तो 12 महीने में ये मुझे 12,000 का ऑर्डर करता है। क्लियर? तो 210 रुपए देके या 500 रुपए आपको देके आपसे 12,000 का बिजनेस ले लिया। वो अलग बात है, मैं 1-to-1 की बात कर रहा हूं। क्लियर? दैट इज कॉल्ड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। क्लियर? तो इन्वेस्टर क्या करते हैं? पैसे देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। क्लियर? अब इन्वेस्टर ने पैसा दे दिया और ये पैसा खर्च कर रहे हैं किस पे? एडवर्टाइजमेंट पे, मार्केटिंग पे, डिस्काउंट्स पे। तो जो पैसा मिला वो खत्म भी तो हो रहा है। क्लियर? इन्वेस्टर को तो रिटर्न मिला नहीं, इन्वेस्टर को तो रिटर्न, फिर इन्वेस्टर दोबारा पैसे देगा, फिर क्या होगा? बिजनेस बंद नहीं। फिर यहां काम आता है BFT, बिग फूल थ्योरी। बिग फूल थ्योरी। बिग फूल थ्योरी क्या है? अब इससे बड़ा मूर्ख ढूंढो जो मेरे बिजनेस में पैसा लगा। ऑब्वियसली जब आपने पैसा मार्केट में थ्रो किया, मार्केटिंग में, क्लियर, तो ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट हुए होंगे, आपका कस्टमर बेस बड़ा होगा। क्लियर? आपने डेटा बनाया कि प्रीवियस मंथ वी वर हैविंग 1000 कस्टमर, विद इन 1 month we now 1 lakh customers. We will approach some big fool जो पहले वाले से ज्यादा मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि अगर वो मूर्ख नहीं होगा तो आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा। क्या दिखाओगे आप उसे कि भाई मैंने 1 महीने में 1000 से 3 लाख कस्टमर कर लिए। क्लियर? प्रॉफिट नहीं आया मुझे, मैंने क्या दिखाया? कस्टमर बेस 3 लाख आ गए। ठीक? तो अब आप पैसा लगाओ। क्लियर? हाँ यार, बिजनेस तो बढ़ रहा है, आज नहीं तो कल रिटर्न देगा। चलो जी, पहले इन्वेस्टर से 5 करोड़ लिए थे। पहले इन्वेस्टर से 5 करोड़ जब लिए थे तब मेरी कंपनी की जो वैल्यू थी वो 1000 करोड़ थी। अब मेरा 3 लाख कस्टमर बेस है, तो मेरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो आज की तारीख में 3000 करोड़ हो गई। तो अब मैं इससे बोलूंगा 100 करोड़ रुपए। इस 100 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए मैं पहले वाले इन्वेस्टर को, बाकी 95 करोड़ यूज करूंगा। क्लियर? कस्टमर बेस बढ़ाने में, बिजनेस को आगे थ्रो करने में और मार्केट में सरवाइव करने के लिए। क्लियर? फिर आपको वहां पर एक ऐसा फेज है जहां कस्टमर की लॉयल्टी गेन करनी है और नए कस्टमर बनाने भी है। क्लियर? कस्टमर की लॉयल्टी, ऐसा नहीं कि जो कस्टमर आपने आज बनाया वो कल आपसे चला गया। तो जितना आपने बनाया उतने ही चले गए तो वो स्टैग्नेंट हो गया, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। लेकिन मान लो आप 3 लाख से 6 लाख पे पहुंच गए, तो 95 लाख तो आपने, 95 करोड़ तो आपने खर्च कर दिए। देन अगेन यू विल टारगेट और बड़ा मूल्य ढूंढो। क्लियर? उससे कहोगे देखो भाई ये पहला इन्वेस्टर था, 5 करोड़ लगाए थे, दे दिए इसके, ये 100 करोड़ इन्होंने दिए थे, तब कंपनी 1 लाख का कस्टमर बेचता है, 3 लाख का था, आज की तारीख में 6 लाख है। क्लियर? अगर हम यही चीज ना करके जो
हम कस्टमाइजिंग करें कि मतलब उनकी जो नीड्स है वांट्स है उसके हिसाब से बनाए तो बैठ जाओ। इनका कहना है कि हम कस्टमाइज करें, बिग फुल थ्योरी बनाएं। बेटा इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है, इन्फ्लेशन इन एनी कंपनी, व्हेनेवर वी रन ए बिजनेस, कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती है। जो पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर है, कल 110 रुपए होगा। जो आपके वेजिटेबल्स हैं, प्राइसेस वेरी करते हैं, वो कोई ना कोई तो पे करेगा। ये वेजिटेबल्स की बात थी। आप किसी भी मार्केट सेगमेंट में ले जाओ, हर जगह प्राइस इंक्रीज हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से, तो ऑपरेशनल कॉस्ट तो बढ़ेगी। जब ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय होगा वो सैलरी भी मांगेगा, उसको सैलरी इंक्रीमेंट भी चाहिए। तो आप उसी कस्टमाइज पे नहीं रह सकते। आप मेरा मतलब ये था जैसे कि आप बोल रहे हो कि मतलब कोई बड़ा मूव पकड़ो तो उसकी चक्कर में बड़ा मुझे बिग फुल हाँ, थ्योरी, big fool, हाँ। बिग फुल थ्योरी, मूर्ख किसी को हम कहेंगे हाँ तो हम उसका मान करें वो पैसा नहीं लगाएगा। बिग फुल थ्योरी ये है कि भाई ऐसा आदमी ढूंढो जो और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बिजनेस मेरा लेकिन इन्वेस्ट वो करो। बिग फुल थ्योरी बोलते से कॉमन नेम, लेकिन ये एक्चुअल में थ्योरी पढ़ाई जाती है। अच्छा सर, वो जो आप बोल रहे हो बिग फूल जो भी है उसको पकड़ना है तो वो कस्टमर है इन्वेस्टर है? इन्वेस्टर है इन्वेस्टर है, अच्छा। जो आपके बिजनेस में पैसा लगा है। लगा रहा है, आपको जिंदा रख रहा है। अब आपने उसको दिखाया कि मेरे पास 6 लाख कस्टमर हैं, नाउ माय कंपनी वैल्यूएशन इज 5000 करोड़। तो मुझे मार्केट से पैसा उठाना है। पहले वाले से मैंने 300 करोड़ लिए थे, इससे मैं 1000 करोड़ लूंगा। क्लियर? 300 करोड़ वाले को मैंने 300 करोड़ निपटा दिया और 700 करोड़ मेरे पास अभी भी है खर्च करने के लिए, ताकि मैं मार्केट में एग्जिस्ट। ऐसे करते 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 कंपनी बिग फुल थ्योरी पे बड़े से बड़ा मूर्ख ढूंढते। एक तो जगह आएगी जहां पर अब कोई तैयार नहीं होगा। then again the company wants money. Company wants money to run because now they have grown up their business on a large scale. Clear? जहां पर उनके पास एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा है, इंफ्रा भी बहुत ज्यादा है। ठीक है? अब उन्हें अब भी बड़ा मूर्ख चाहिए जो और पैसा, तो वो कौन होता है? आप। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्लियर? समझ में आया कंपनी IPO क्यों लाती है? क्योंकि अब इंडिविजुअल उनकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट नहीं कर पाता। अब वो वहां पर क्या करते हैं? IPO रिलीज करते हैं स्टॉक मार्केट में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पर वो शेयर रिलीज करते हैं। क्लियर? मार्केट में जब वो शेयर रिलीज करते हैं तो वहां पे प्राइस बैंड होता है कि मेरे शेयर कितने रुपए में बिकेंगे। क्लियर? ये सब आइडिया है, नॉलेज है या नहीं अभी? तो प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड थ्योरी क्या लग रहा है? इंटरेक्टिव है? अच्छा है या रोक दूं? अच्छा। क्योंकि ये किताब की नॉलेज नहीं है। ये आपको तब काम आएगी जब आप अपना स्टार्टअप। मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई है, पहले इसका कारण जानो। मैंने आपसे कहा आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। क्लियर? आपसे ज्यादा पहले पढ़े हुए लोग, आपसे ज्यादा काबिल लोग मार्केट में मौजूद हैं। क्लियर? आप पास आउट कब होंगे? 25 में। जो 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में पढ़े हुए होंगे, पास आउट हुए होंगे, वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर? आप भी पढ़ रहे हो, आप 26 में। सो द इंडियन गवर्नमेंट डजंट हैव दैट मच इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर दे कैन प्रोवाइड जॉब टू ईच एंड एवरीवन। Clear? But again, we have to survive in this real world and we have to fight for our bread and butter.
हमको भी फाइट करना पड़ेगा ब्रेड एंड बटर के लिए. Clear? Then what technique should I have so that I can separate myself from the rest of the people? Those who will have the equivalent degree, BBA, MBA. Why should the company would hire me if I do have some extra knowledge where I can implement those knowledge and I can generate revenue for my company? Then only the company would hire me. Clear? Otherwise, what would happen? You would have a scrap of paper that called degree. You will paste it over the wall of your home that I have completed BBA and even I am employed. Clear? Then you have some practical knowledge that you can imply. So after completion of your BBA, if you would start thinking, then my dear friend, you are late. You have to think before time. So that when you completing your BBA, you are very much clear what you are going to do. Either you would go for running your own family business or you are going to know startup. अब startup world बहुत अच्छा लगता है. Because we human beings, we have a perception. The people should feel that I am a classy one. I am not the part of mass, I am the class. The people should follow me. Clear? Everybody should like me, everybody should praise me. And that is called perception management. Clear? So people keep on talking that I am having a startup. I am going to develop a venture. But what is venture or startup? आपने कोई वेब सीरीज देखी, आपने कोई मूवी देखी, उसमें एक ने बहुत गरीब था और उसने पैसा बनाया और आज की तारीख में बिलियनर है. क्या आप भी गए? हाँ, मेरी जेब में आज 5-6 लाख रुपए लगा देता हूँ, ठीक, और कल मैं 5 करोड़ कमाऊंगा. इज इट सो इजी? तो सबसे पहले स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या हुई? स्टार्टअप हमेशा उस चीज को कहते हैं जो इनोवेटिव हो, जिसमें ये काबिलियत हो कि वो इन्वेस्टर का पैसा यूटिलाइज करके, न केवल यूटिलाइज, आज बायजू बंद हुआ, बायजू लॉस में है, इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा रहे. शाहरुख खान ने जब ऐड किया बायजू का कोचिंग सेंटर का, शाहरुख खान ने फ्री में किया होगा? नहीं ना? शाहरुख खान तो अपने पैसे लेके गया. ठीक, टीवी में एड्स आए, टीवी चैनल अपने पैसे लेके गए. बायजूस कौन कस्टमर्स नहीं मिले. नाउ बायजू को जो पैसा मिलना था मिल चुका. बायजू लॉस में है और आप कुछ सालों में देखोगे 1-2 साल में बायजू मार्केट से गायब. तो इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है. शेयर मार्केट में आईपीओ निकले थे, वो भी डूब जाएंगे. तो एट लास्ट यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ. ऑन दैट स्ट्रेंथ, if you are running your venture, that means you would survive in the market. Clear? Else you would be out of the market. So entrepreneurship means what? अगर आप में वास्तव में अपना स्टार्टअप ओपन करना है, मैं यहाँ आता हूँ, मेरी जॉब फिक्स है. I will come here at 9, I will punch, and after 5, I will go back to my home. After 5, whatever is happening is none of my business. But if I am an entrepreneur and I am running my own venture, that there is no time foundation. 24/7 is my rule. I have to keep on thinking. मुझे सोचना है कैसे मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा. क्लियर? कैसे मैं इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर भी जानता है कि मैंने इसको 300 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसको मालूम है कि अगर मैं इसे 300 करोड़ दे रहा हूं तो मुझे 300 करोड़ निकलवाने कैसे. क्लियर? वो आपको पैसा खर्च करने के लिए नहीं दे रहा, वो इस विश्वास पे दे रहा है कि वो आप उसे 300 करोड़ का 600 करोड़ वापस करके दोगे. क्लियर? दैट मीन्स
You have to work 24 hours. 24 into 7, 365. तो एंटरप्रेन्योर कहने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं. आप इनोवेटिव आइडिया मीन्स क्या? एक्चुअली में जो वास्तव में इनोवेटिव आइडिया हो, जैसे फेसबुक हुआ, इनोवेटिव आइडिया था. इसका पहले मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं था, और जब ये मार्केट में आया तो भी इसका कोई कंपटीटर नहीं था. क्लियर? That was the innovative idea. Investor invested their money and they have returned their investment. Now they are in profit. That was the innovative idea. कि भाई आज की तारीख में एक लेटेंट नीड है लोगों की. लोग चाहते हैं कि लोग मुझे देखें, मेरी प्रशंसा करें और मुझे एक सोशल रिकॉग्निशन मिले. क्लियर? उस सोशल रिकॉग्निशन के लिए उसने एक नेट वेब क्रिएट किया. अब वहां पर डिस्प्ले क्या होता है? एड. क्लियर? आपका डेटा उसके पास है, आपकी लाइक डिसलाइक उसके पास है, आपकी हैबिट्स, आपकी परचेजिंग पावर, सब कुछ उसे मालूम है. क्लियर? दूसरा, फेसबुक का कोई भी एम्प्लॉय कंटेंट लिखता है. ये साहब आज गए ताजमहल, उन्होंने अपनी ताजमहल के आगे फोटो खींची और डाल दिया. तो इन्होंने क्या किया? एक कंटेंट डेवलप किया. ये साहब लाल किला गए, इन्होंने वहां की फोटो डाल दी. आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां की फोटो डाल दी. तो क्या किया आप लोगों ने? एक दूसरे के लिए कंटेंट डेवलप किया. क्लियर? आपने इसका कंटेंट देखा, आपने उनका कंटेंट देखा, आपने उनका कंटेंट देखा, और सबने कंटेंट देखा. और हर टाइम नया कंटेंट. ऐसा नहीं केवल आपने एक ही बार पोस्ट किया. आप खाना खाने गए, आपने खाना खींचा, फोटो डाल दी. क्लियर? मीन्स क्या? हर दिन नया कंटेंट, हर दिन. अब जैसे इस क्लास में मैं आपको एंगेज कर रहा हूं, और मेरी चूंकि जो लेक्चर है अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे रहोगे, अदरवाइज नहीं रहोगे. क्लियर? अगर मैं यहां पर नहीं होता तो आप शायद यहां पर नहीं बैठे होते, आप क्लास छोड़कर बाहर चले गए होते, कैंटीन चले गए होते, या आप बाहर घूम रहे होते. तो प्लेटफॉर्म जो फेसबुक का है उस पर एक दूसरे को बिजी कौन रख रहा है? कंटेंट. वो कंटेंट कौन डाल रहा है? आप लोग एक दूसरे को एंगेज कर रहे हो. क्लियर? क्या उसने आपको इसके लिए पैसा दिया? 3 घंटे रोज आप फेसबुक पे रहते हो. झूठ क्यों बोल रहे हो? वो भी मेटा का ही है. क्लियर? क्या उसने आपको पैसा दिया? कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, एक दूसरे को एंगेज आप कर रहे हो. सो डिड यू गेट इवन a single penny from the Facebook? Even in lieu of that, they stolen all the data from your site. Your like, your dislike, your purchasing power, your purchasing habit, the location you are having, what kind of information or messages you are sharing with your, each and everything they know. And they have developed a network across the world. आज पूरी दुनिया में उसका नेटवर्क है. वो जहां चाहे जिस जगह वो कुछ भी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है, without any kind of recruiting the people. So next time whenever you say, so you are supposed to say I am digital labor of Facebook. ठीक है? For that Facebook doesn't pay anything to me. Whenever you start using Facebook, you keep on saying that I am the employee of Facebook, I am the employee, digital labor of Facebook, but the Facebook doesn't pay anything to me. Clear? So that kind of innovative idea. Throughout the world, they know what is in which area क्या चल रहा है. अब 1 अरब 42 करोड़ तो हिंदुस्तान में ही है. थ्रू आउट ऑफ वर्ल्ड जाओ उसकी पॉपुलेशन, चाइना में, कोरिया में, जापान में, यूएस में, हर जगह फेसबुक है.
जो कंपनी चाइना में भी है, चाइना में भी है, चाइना वीवो उसकी अपनी है, लेकिन ऐसा नहीं चाइनीज पीपल फेसबुक पे नहीं है। द पीपल दोज हु आर नॉट रिसाइडिंग इन चाइना बट दे आर वर्किंग ओवरसीज, दे आर आल्सो ऑन फेसबुक। क्लियर? तो अब क्या है, उसको मालूम है कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी में ग्रेटर नोएडा में दिवाली के टाइम पे इस सामान की बिक्री ज्यादा होती है। यहाँ इतने पोटेंशियल बायर्स हैं इस पर्टिकुलर चीज के, उस कंपनी को फोन करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन में तुम्हारे इतने बायर्स हैं, क्लियर, जो तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, 1 लाख बायर्स हैं, क्या तुम अपना एड यहाँ डिस्प्ले करना चाहोगे? क्लियर? कंपनी कहेगी हाँ ठीक है, मैं आपको ऐड दिखाने के लिए 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा पर कस्टमर लूंगा। क्लियर? 1 लाख अगर 1 रुपया भी लेता है एक बार ऐड दिखाने के, जैसे आप फोन पे ऐसे ऐसे करते रहते स्क्रॉल, आपने देखा भी या नहीं देखा कुछ पता नहीं, लेकिन एक बार स्क्रीन के आगे से चला गया, काउंट हो गया। तो 1 रुपया भी एक कस्टमर को दिखाने के लिए लेता है, तो 1 लाख लोगों को दिखाने के लिए कितने पैसे लिए? 1 लाख। क्लियर? और वो उसकी सेकेंडों की कमाई है। और मान लीजिए वो पर्टिकुलर केवल वही इंडस्ट्री है, नहीं, टीवी सैमसंग भी बनाता है, टीवी एलजी भी बनाता है, टीवी सोनी भी बनाता है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सारी कंपनियों को कहेगा कि दिवाली आ रही है, ये लोग खरीदेंगे, तो 10 कंपनियों से अगर उसने 1-1 रुपए के हिसाब से लिया और उसको क्या लगा? नेटवर्क आपने बनाया, एक दूसरे को कनेक्ट आपने किया, एक दूसरे को एंगेज आपने किया, उसका क्या गया? सो दैट इज द इनोवेटिव आइडिया, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। यहां पर जो इन्वेस्टर्स थे, उन इन्वेस्टर्स को 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम, 50 टाइम पैसा रिटर्न मिला। क्लियर? अब मैंने कहा फेसबुक चलाते हो? आपने कहा नहीं, वी यूज टू इंस्टाग्राम। तो बेटा इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा थ्रेट था फेसबुक के लिए। क्लियर? फेसबुक ने अपना एक राइवलरी मार्केट में देखा कि द पीपल आर शिफ्टिंग ऑन इंस्टा वेरी स्विफ्टली, then what should we do to remain in the market? They acquire Instagram. Now the Instagram is the part of Facebook. Rivalry खत्म कर दी। WhatsApp, earlier मैसेंजर हुआ करता था, मैसेंजर से ज्यादा लोग WhatsApp पे थे, तो क्या किया उसने? WhatsApp acquire कर लिया। Clear? Do or die? आज की तारीख में न केवल मार्केट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, बल्कि अपनी जो राइवलरी कंपनी है जो उसके लिए थ्रेट हो सकती हैं, उनको भी एक्वायर। इंस्टाग्राम को कैसे एक्वायर किया होगा? इंस्टाग्राम कम अप विद द न्यू इनोवेटिव आइडिया, उसको लगा मुझे पैसा चाहिए। क्लियर? उसको लगा मुझे पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए कहा गया होगा? Investor. Who will invest amount of money? Those who are having huge amount of money. Big businesses house. वही तो इन्वेस्ट करेंगे कि मैं और आप करेंगे? हम और आप तो बड़े वाले फूल्स हैं। जब आईपीओ आता है तब लगाते हैं। जहाँ हम शेयर मार्केट में देखते हैं आज 10 रुपए, कल 9 रुपए हो गए, फिर 8 रुपए हो गया, चलो बेच दो इसको भी। 10 लगा के 8 निकाल के आते हैं। ठीक? तो ये गेमिक्स आपको समझने पड़ेंगे। उसने देखा अच्छा इतना 3000 करोड़ दिए, अब उस पे कंपनी पे 51% शेयर मेरे, फिर धीरे 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 एक्चुअल शेयर जो उस कंपनी का ऑनर होता है उसके 5 या 10% बच जाते हैं। कंपनी का मालिक भी रहता है लेकिन 5 से 10% शेयर का। तो ये चीजें तुमको पढ़नी है जो तुम्हारे बिजनेस में। कल को तुम अगर अपना स्टार्टअप ओपन करते हो तो वो कोई मूवी देख के नहीं होता, वो कोई वेब सीरीज देख के नहीं होता कि आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड हो गए, नहीं अब तो मैं बस पिताजी को अगले साल 10 करोड़ कमा के दे दूंगा। नहीं,
क्लियर? अगर तुम्हारे पास वास्तव में कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो एक्चुअल में पब्लिक को लगता है कि हाँ इसका कमर्शियलाइजेशन बेनिफिट देगा, तो पैसा लगाना, अदरवाइज इट्स ए रिस्की जॉब, इट्स ए, और यू हैव टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी विद इन योरसेल्फ, अराउंड योरसेल्फ। अपने मार्केट में आसपास अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी देखोगे तभी आप सरवाइव कर पाओगे। कोई सवाल? अच्छा, स्टार्टअप को पैसा क्यों चाहिए होता है ये बताओ? डे टू डे ऑपरेशन। प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना रीच बढ़ा सकें, दूसरा को उसका जो आइडिया मार्केटिंग करते हैं। कोई भी स्टार्टअप अगर होता है तो वो बहुत छोटा होता है, ठीक है? कोई भी स्टार्टअप शुरू में बहुत, उसको कोई भी बड़ी कंपनी रातों रात उसके राइट्स, उसकी डुप्लीकेसी कर सकती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर सके, इसलिए वो अपने शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करता है। इसलिए नहीं, मान लो अगर आज ओला के पास केवल 10 ही कार होती, 20 कार होती, 25 कार होती, 30 कार होती, क्या आपको लगता है कि आज ओला को हम लोग जानते हैं? वो एक जगह गाजियाबाद में चल रही होती, दिल्ली में किसी को पता नहीं होता। ओला ने अपने साथ कम से कम 10-15 हजार कारों को जोड़ा, जिसकी वजह से ओला लुक में आया। आज लाखों करोड़ उसके पास कार है। और एक बात, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से जो सीएनजी महंगी हुई, जिसकी वजह से ओला लॉस में आया। अदरवाइज ओला was one of the biggest innovation where they doesn't have any ownership of cars, but they were having millions of cars. ड्राइवर रिक्रूट नहीं करने पड़े, कार खरीदनी नहीं पड़ी। क्या किया उसने? आपको टैक्सी चाहिए थी, टैक्सी वाले को सवारी चाहिए थी, एक ऐप बना के दे दिया। अब आपसे भी ले रहे हैं पैसे, भी ले रहे हैं पैसे, क्लियर? और पहले जब आप ओला की सर्विस लेते ना, वहां पर एक टिक मार्क कराता है कि अगर आपके साथ कोई घटना दुर्घटना और हादसा हो गया तो इसके लिए ओला कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। सो दैट इज इनोवेटिव आइडिया। और उस टाइम पे ओला को काफी पैसे मिलते थे। क्यों? क्योंकि जितने पैसे आपको ऑटो वाला देता था, उतने पैसे में आपको कार मिलने लगी। आप 100 रुपीज में, 110 रुपीज में 10 किलोमीटर तक सफर करने लगे विथ फुल लग्जरी, विथ सेफ्टी। ऑटो में बैठो, क्या होता है? बंदर बना देता है आपका धूल मिट्टी से, है या नहीं? आप when you are sitting at AC car at very nominal cost, when you are sitting in a car, in a AC car at very nominal cost, 110 rupees, आपके पास एक फील गुड फैक्टर आता है, यार आराम से जा रहा हूं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, थकावट नहीं, एंड यू फील योरसेल्फ फ्रेश। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? यू विल प्रेफर टू बुक ओला। और ओला ने वो एंजॉय किया। और ओला का कोई कंपटीशन दिखा आपको? बहुत बात है। उबेर यूरोप में था, उबेर यूरोपियन कंपनी थी, यूरोप में थी, ओला इंडियन कंपनी में आया। क्लियर? तो दिस काइंड ऑफ इनोवेटिव आइडिया, जहां उसने रातों रात पूरे मार्केट को कैप्चर किया और मार्केट से ज्यादा पैसा निकाला और अपने इन्वेस्टर को ज्यादा पैसा दिया। अब बगल में समोसे की दुकान खुली है, आपने भी समोसे की दुकान खोल ली और कहा मेरा स्टार्टअप है। That is not a startup, that is traditional business. The competitor is already existing in the market. आप 4 रुपए का बेचोगे, वो 3.5 का कर देगा। अब उसमें तुम क्या कर सकते हो? देखो, हंसने की बात नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी मैथोडोलॉजी आप अडॉप्ट करो कि आप 2 का क्या 25 पैसे का बेचो और आप उसमें भी प्रॉफिट कमा लो। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग। तो आज से सोचना शुरू करो। क्यों? क्योंकि कल जब तुम पास होके 2025 में निकलोगे, 26 में, तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा,
अब क्या? क्लियर? जॉब्स नहीं है मार्केट में, जॉब्स मार्केट में है नहीं, और किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। क्लियर? आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, मैंने बता दिया एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं होता। पैसे कैसे बनाते हैं, अगर हमें कभी मौका मिला फिर बात करने का तो हम बात करेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि जब आप यहाँ से 2025 में पास आउट होकर निकलें 26 में, तो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, मार्केट की पूरी कंसेप्चुअल क्लियरिटी। क्लियर? आज आपका पहला दिन था जिसमें मैंने आपको थोड़े से बिजनेस आइडियाज दिए। डू यू थिंक इट इज ए वर्थवाइल? ऐसा तो नहीं मैंने आपका टाइम खराब किया? अब एक बात ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ईयर के हैं, अटेंडेंस पूरी रखिए 75%। क्लियर? मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ जब मैं क्लास में हूँ, लेकिन उतना ही बुरा आदमी हूँ जब मैं क्लास के बाहर हूँ। अटेंडेंस हो गया सबका? कोई रह तो नहीं गया इसमें? चलिए, तो अब इनको 75% अटेंडेंस सबको पूरी करनी है, वरना एक सेमेस्टर की फीस वसूल लूंगा। क्लियर? बहुत बड़ा बिजनेस है। अब आप आराम से